Today we are going to start our next first chapter from mathematics 1, that is linear equation in two variable. Now last year actually we have studied this, if you remember, linear equation in two variables. So what is mean by linear equation in two variables? The equation where two variables are present and the degree or the power of each variable is 1. Such type of equation is called as linear equation in two variables. Now the general formula for GF, जिसे हम बोलते हैं जनरल फॉर्मूला फॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ax प्लस by plus c is equal to 0. This is general formula for linear equation in two variable, wherein just you can see that x and y, these x and y, they are variables. These are two variables, and these a b c are real numbers. A b c are real numbers, and x and y are variables. And where a and a b c are real number, where a should not be equal to 0 and b should not be equal to 0. a ये 0 नहीं होना चाहिए, b भी 0 नहीं होना चाहिए. Why? Because if we put this 0 in this equation, the equation will be like this: plus c is equal to 0, and the answer is 0. So this equation becomes one variable equation, if you see, because after multiplying with 0, the answer is 0. That's why a should not equal to 0 and b should not be equal to 0. Okay, so this is called as linear equation in two variables. One example is given here in the textbook, that if we write this equation 3x is equal to 4y minus 12, this equation is given. If you want to know whether this equation is linear equation in two variable or not, just try to write this equation in this ax plus by plus c is equal to 0 in this form. So for this you have to shift these numbers here, like 3x, ये 4y दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस होगा, and minus 12 will be plus 12 is equal to 0. Now these are the variables and this is the coefficient. That means this equation is in two variable, linear equation in two variable. Now in textbook page number 1, you have one activity to complete the table by telling whether the equation is linear equation in two variable or not. Okay, now let us see that activity. So this is the table given in the textbook. First it is given 4m plus 3n is equal to 12. Now as you observe, this equation m and n, these are variables, x and y, a and b, m and n, any variables can be used. So and this is in the form of like if we shift this 12 here, so the equation will be 4m plus 3n minus 12 is equal to 0. अगर आप देखोगे, आपको सिर्फ इसे ऑब्जर्व करना है, ये इक्वेशन इस फॉर्म में है या नहीं. जस्ट ये आप देख सकते हो, ये इसी फॉर्म में है. दैट मीन्स दिस इज linear equation in two variable. That's why already in the textbook it is given, that is yes. The next equation को आपको देखना है 3x square minus 7y is equal to 13. अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये नजर आएगा कि x का जो पावर है वो 2 दिया है यहाँ पे इंडेक्स, और हमने पहले कंडीशन रखी है दैट द पावर और द इंडेक्स ऑफ x एंड y शुड बी 1. x और y की जो इंडेक्स है वो 1 होनी चाहिए. तो यहाँ पे हम पावर ये इंडेक्स 2 देख रहे हैं x की. दैट मीन्स दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सो हियर वी विल राइट हियर नो, दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. देन नेक्स्ट इज √2x माइनस √5y इज इक्वल टू 16. अभी यहाँ पे हम अगर हम देखेंगे दिस x एंड y they are separate and these are under root. That means we have already said that a b c are real numbers. a b c रियल नंबर्स है, तो यहाँ पे √2 एंड √5 ये भी रियल नंबर है. इसका मतलब ये भी इसी फॉर्म में आते हैं. दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर ये रूट यहाँ पे होता x एंड y के लिए, फॉर एग्जाम्पल इट विल बी लाइक इफ ऐसे होता √2
सॉरी 2 इंटू रूट एक्स माइनस 5 इंटू रूट वाई इज इक्वल टू 16। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, क्योंकि एक्स एंड वाई इसका जो यहाँ पे देखना है हमें वो सिंपल फॉर्म में है और इसका इंडेक्स 1 है, तो ये रॉन्ग है। मतलब अगर ऐसे होता तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होता। ओके, देन नेक्स्ट दैट इज फोर्थ वन, 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये जो x का कोएफिशिएंट है ये 0 है, बट हमने पहले ही दिया है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये 0 आया है, इसका मतलब दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नेक्स्ट फिफ्थ में देखेंगे हम 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो y के लिए यहाँ पे कोएफिशिएंट जो दिया है वो 0 है। यहाँ पे भी हमने देखा है कि y मीन्स ऑलरेडी b, y का जो कोएफिशिएंट है b दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और यहाँ पे वो 0 दिया है, इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब नेक्स्ट सम में हम देख रहे हैं कि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है। अगर वह फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है देन वी कैन कन्वर्ट इट इन द सिंपल फॉर्म बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो दैट मीन्स दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें हमें एक्स एंड वाई प्रॉपर फॉर्म में मिल रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे 7th सम में 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स वाई का यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन है तो ये टू वेरिएबल इक्वेशन नहीं तैयार हो सकता। दैट मीन्स दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इन दिस फॉर्म वी कैन fill this table by telling which equation is linear equation in two variable and which is not. Do you understand? So next part, that is simultaneous linear equation. This is also we have studied last year, if you remember. Now what is meant by simultaneous linear equation? If we consider two linear equations, linear equations and they have common unique solution, मतलब जिनका x and y की वैल्यू कॉमन आती है, दैट इज कॉमन यूनिक सोल्यूशन, then such type of equations are said to be simultaneous linear equation. Now we have to solve this simultaneous linear equation and just find the solution of x and y. हमें वेरिएबल्स के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। अगर हमारे पास दो इक्वेशंस दिए हुए तो जिनको हम साइमल्टेनियस बोलते हैं, उसे हम सॉल्व करेंगे। नाउ इसे सॉल्व करने के लिए हमने अगेन लास्ट ईयर दो मेथड सीखे हैं, अगर आपको याद है। वन दैट इज सब्सटीट्यूशन मेथड एंड सेकंड दैट इज एलिमिनेशन मेथड। आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस सम बाय टू ऑफ दिस मेथड्स। ओके, दोनों मेथड से हम सॉल्व करने वाले हैं, बट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते समय आप कौन सी भी एक मेथड यूज कर सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पे मेथड 1 यूज करेंगे, दैट इज सब्सटीट्यूशन मेथड। यहाँ पे सम लिखा हुआ है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 and 3x plus y is equal to 2. Now let us give numbers to this equation. 5x minus 3y is equal to 8. This is our equation number 1. Numbering करना है इसे. Then next equation 3x plus y is equal to 2. क्योंकि हम ये सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, वी नीड वैल्यू ऑफ x और y, दोनों में से एक की वैल्यू हमें चाहिए जो हम सब्सटीट्यूट करेंगे किसी इक्वेशन में। अब ये सॉल्व करने के लिए हम लेंगे इक्वेशन 2 को और उसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं y को कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसका हमें फ़ायदा हो सकता है। तो हम ये इक्वेशन यहाँ पे लेंगे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जैसे ये 3x यहाँ पे प्लस है तो दूसरे साइड लेंगे y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। Now here we have got the value of y is equal to 2 minus 3x. Now we can put this value in any of the equation. So यहाँ पे नीचे हम लिखेंगे put value or substitute value of y in equation 1. इक्वेशन 1 के अंदर हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 लिखेंगे 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। याद रखना है कि हमें y की प्लेस में ये वैल्यू लिखनी है, तो हम ये ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 5x माइनस 3 इंटू ब्रैकेट 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 8। ब्रैकेट कंप्लीट करना है यहाँ पे। नाउ मल्टीप्लिकेशन करना है
5x, अब 3 2 जा minus, 3 2 जा 6, and this minus minus will be plus, 3 3 जा 9, 9x is equal to 8. Now simultaneously हम यहाँ पे 6 को जैसे दूसरे साइड में अगर हम लेके जाएंगे तो एक ही साथ में ये करना है हमें, 5x प्लस 9x दैट इज इक्वल टू 14x, लाइक टर्म्स है, इज इक्वल टू 8 प्लस 6, 14x इज इक्वल टू 8 प्लस 6 दैट इज 14. दोनों साइड पे 14 आ गया, डोंट वरी. इस 14 को हमें दूसरे साइड में डालना है, x इज इक्वल टू 14 अपॉन 14, x इज इक्वल टू 1. तो हमारे यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई है 1. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ y. नाउ अगेन यू पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. हम x इज इक्वल टू 1 पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 के अंदर डालते हैं हम ये वैल्यू. यहाँ पे हम दूसरा इक्वेशन लिखेंगे, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 3 1 जा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2. ये 3 हम दूसरे साइड में लेके जाएंगे, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो एडजस्ट देख लेना. y इज इक्वल टू 2 माइनस 3, y इज इक्वल टू माइनस 1. 3 में से 2 गए और बड़े नंबर का साइन यहाँ पे दिया है. सो हमारे यहाँ पे दो वैल्यूज मिल गए हैं, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. हम ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, अगर आपको याद है, एक्स एंड वाई इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू पहले लिखनी है 1 एंड वाई की दैट इज माइनस 1. So this is our substitution method. Now method second we are going to use for the same sum, that is elimination method. Elimination method के लिए भी हम वापस यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, that is 5x minus 3y is equal to 8. ये हमारा इक्वेशन 1 है, and then 3x plus y is equal to 2. ये हमारा इक्वेशन 2 है. अब यहाँ पे इलिमिनेशन मेथड में इलिमिनेट करना मतलब वन ऑफ द वेरिएबल को आपको इलिमिनेट करना है. अब जब भी हम ऐसा सोचते हैं तो हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है. फर्स्ट तो आपके यहाँ पे सेम पेयर होने चाहिए, मतलब एग्जैक्टली सिमिलर आपके ये कोएफिशिएंट्स होने चाहिए, अगर और अपोजिट साइंस होने चाहिए. अपोजिट साइन हो गए तो हम इसको ऐड कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सेम पेयर भी नहीं है और यहाँ पे अपोजिट साइन तो है लेकिन सेम पेयर नहीं है. अगर हम ये देखेंगे ये, तो y का पेयर यहाँ पे y का कोएफिशिएंट भी 3 होने के लिए अगर हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते तो हमें y का कोएफिशिएंट 3 मिल जाए, जैसे लास्ट ईयर हमने किया था. तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3. ठीक है, 3 से हमें इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है. तो मैं ये डायरेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे, अदरवाइज लिखेंगे हम ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं, प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6. तो ये मिल गया हमें इक्वेशन 3. अब यहाँ पे हम इक्वेशन 3 में देखते हैं कि y का कोएफिशिएंट भी 3 आया. अगर आप यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड को ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि y का कोएफिशिएंट 3 मिल गया है और अपोजिट साइन भी है. तो यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं दोनों इक्वेशन को तो हमारा y एलिमिनेट हो जाता है. तो यहाँ पे हम आगे का इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 3. इक्वेशन 3 दोनों को ऐड करना है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. यहाँ पे एडिशन करना है, दैट मीन्स नो साइन चेंजिंग. तो यहाँ पे ये सबसे पहले कट हो जाएगा y, और 5x प्लस 9x इज इक्वल टू 14x एंड 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14. अगेन द सेम सिचुएशन, x इज इक्वल टू 14 अपॉन 14, x इज इक्वल टू 1. x की वैल्यू 1 आ गई है. नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2. पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 ज़रा इजी लग रहा है इसीलिए मैं इक्वेशन 2 में डाल रही हूँ. सो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 3 1 ज़ा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2.
y इज इक्वल टू 2, ये 3 दूसरी साइड जाएगा, -1, बड़े नंबर में से छोटा गया -1. सो यहाँ पे x हम यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस x y that is equal to 1 and -1. So these are the two methods, that is substitution method and this is elimination method. You can use any method. मैं प्रैक्टिस सेट में एलिमिनेशन मेथड यूज करने वाली हूँ, तो आप इसमें से कौन सी भी मेथड, ये सब आपको टेक्स्ट बुक में सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, वापस मैंने लिया है, इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट के सम सॉल्व करने वाले हैं. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, दोज हु आर नॉट हैविंग टेक्स्ट बुक. जिनके पास टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक में से कॉपी कर सकते हैं. Practice set 1.1. Now we are going to start. Here, question number 1 is there. Complete the following activity to solve the simultaneous equation. Here, simultaneous equation solve किया है, ये एक activity दी है और आपको just fill in the blanks करना है. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 5x plus 3y is equal to 9, ये equation 1 है. 2x minus 3y is equal to 12, ये equation 2 है. Now let's add equation 1 and 2. ये addition किया हुआ है, that means ये पूरा solve किया है, सिर्फ आपको देखना है. 5x ये एडिशन करने के बाद हमें यहाँ पे सिर्फ x लिखा है क्योंकि y यहाँ पे इलिमिनेट हुआ है, ये आपको समझ में आना चाहिए. यहाँ पे y इलिमिनेट हुआ है, तो 5x प्लस 2x कितना आएगा 7x. देन 9 प्लस 12 कितना आएगा 21. तो ये आ गया. यहाँ पे नेक्स्ट x इज इक्वल टू, अब ये यहाँ पे 7 दूसरी साइड जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर आएगा 21 डिवाइडेड बाई 7. 7 3 ज़ा 21, तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई ये. और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि पहले से ही लिखा हुआ है, प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में 3 डालना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाय का क्या आएगा 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9. 3y 5 3 ज़ा 15, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके दूसरी साइड में भेजा है. 9 माइनस यहाँ पे आएगा 5 3 ज़ा 15. सो 9 माइनस 15 मतलब 15 में से 9 गए कितने रह गए 6 एंड 5 माइनस साइन यहाँ पे आएगा. देन यहाँ पे ये 3 दूसरी साइड जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पे आएगा -6/3. सो 3 2 ज़ा 6, तो -2. तो यहाँ पे y की वैल्यू हमें -2 मिली है और x की 3 मिली है. तो यहाँ पे सॉल्यूशन इज xy इज इक्वल टू 3. x की वैल्यू पहले लिखनी है और y की -2. In this way this activity can be solved. Second question that is given, that is solve the following simultaneous equation. यहाँ पे simultaneous equations आपको दिए गए हैं 8 simultaneous equation है, उसमें से मैं 2 सॉल्व कर रही हूँ, बाकी की 6 आप घर में करना है. ये एक फर्स्ट इक्वेशन है जो हम सॉल्व कर रहे हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 3a + 5b इज इक्वल टू 26 एंड a + 5b इज इक्वल टू 22. मैंने पहले ही आपको बताया कि आप दोनों मेथड में से कौन सी भी मेथड यूज़ कर सकते हो. मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रही हूँ, तो एलिमिनेशन मेथड हम स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे हम सबसे पहले नंबरिंग करेंगे इक्वेशंस को. 3a + 5b इज इक्वल टू 26, दिस इज आवर इक्वेशन 1. देन नेक्स्ट a + 5b इज इक्वल टू 22, दिस इज आवर इक्वेशन 2. नाउ as you observe both these equation, b 5b ये सेम पेयर हमें नजर आ रहा है, बट उसकी साइन अपोजिट नहीं है. दैट मीन्स यू हैव टू सबट्रैक्ट हियर. अगर अपोजिट साइन है तो हम सब इक्वेशंस को ऐड करते हैं. यहाँ पे ये साइन सिमिलर है, इसका मतलब हमें सबट्रैक्शन करना होगा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 या 2 फ्रॉम 1, ऐसे लिख सकते हैं आप इक्वेशन 1. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3a + 5b इज इक्वल टू 26, a + 5b इज इक्वल टू 22. देन सब्ट्रैक्शन का साइन देना है. एज सब्ट्रैक्शन किए हैं सभी साइंस चेंज होने वाले. यहाँ पे 3a में से a गया, यहाँ पे ये 5b एंड -5b कैंसिल हो गया, b एलिमिनेट हो गया. 3a में से -a गया, तो यहाँ पे रह गया 2a इज इक्वल टू 26 में से 22 गए, कितने रह गए 4. a इज इक्वल टू 4/2. a इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4. ये a की हमें वैल्यू मिल गई है. नाउ यू कैन पुट दिस वैल्यू इन एनी ऑफ द इक्वेशन. हम इस a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, जो हमें इजी नज़र आ रहा है. सो पुट a इज इक्वल टू 2
इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हम वैल्यू डालेंगे तो हम यहाँ पे लिखते हैं a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22। ये 2 यहाँ पे ऐड है, प्लस है, दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस होगा। देन 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2, 5b इज इक्वल टू 20। दिस 5 इज मल्टीप्लाई हियर, दूसरे साइड जाएगा तो ये क्या होगा, डिवाइड होगा। b इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 5, b इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20, 4 ये b की वैल्यू आ गई। दैट मीन्स a और b ये दोनों की वैल्यू हमें मिल गई है। तो यू कैन राइट इट हियर सॉल्यूशन। मैंने आपको पहले ही बताया x y a b m n कौन से भी लेटर हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन इज a b इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 2 4। सो दिस इज, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Go. We have seen first example, 8 sums यहाँ पे दिए हुए हैं, you have to solve all, but 6 sum में थोड़ा सा आपको confusion अगर आ गया तो इसके लिए मैं 6 sum भी आपको solve करके बता रही हूँ। यहाँ पे ये fractions आए हैं, इसे देख के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक चीज़ करनी है कि यहाँ पे ये जो 2 इक्वेशन दिए हैं उन्हें सबसे पहले तो हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लाना है। अब इस फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम विल गिव द नेम 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3, इसे हम बोलेंगे इक्वेशन 1। देन 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4, इसे हम बोलेंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 में कुछ 1 में दोनों साइड में कुछ सिमिलरिटी आपको नज़र आती है, दैट इज़ 3 है दोनों का डिनोमिनेटर, और यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर 4 है। तो अगर हम इसे, हमें डिनोमिनेटर को रिमूव करना है तो हम अगर इसी को पूरे इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ पे 4 से करते हैं तो ये 4 निकल जाएगा। तो हमें एक नॉर्मल फॉर्म के, सिंपल फॉर्म की इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। ये समझ में आया है ना आपको, 3 क्यों किया है, क्योंकि हमें 3 एलिमिनेट करना है। एंड इक्वेशन 2 बाय 4। तो ये करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टली 3 इंटू ब्रैकेट 1/3 x प्लस y इज इक्वल टू 10/3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो यहाँ पे ये 3 और 3 कट हो जाएगा, और ये 3 इसके साथ वापस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आएगा सिर्फ x प्लस 3y, ये आएगा यहाँ पे, एंड ये भी 3 यहाँ पे कट हो गया, और यहाँ पे मिल गया हमें सिर्फ 10। 3 एंड 3 यहाँ पे कट हो गया, और यहाँ पे ये सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। मैंने बीच वाली एक स्टेप लिखी नहीं है, जो आएगा यहाँ पे 3/3, मतलब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आएगा 3/3x, जिसमें से ये 3 कट होता है और ये x होता है, और फिर y को भी मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। अब इसे हम बोलेंगे इक्वेशन 3। ये हमें मिल गया है सिंपल फॉर्म का इक्वेशन, जिससे हम बोलेंगे इक्वेशन 3। नेक्स्ट हमें इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन 2 लिख रहे हैं 1/4 y इज इक्वल टू 11/4 मल्टीप्लाइड बाय 4। डायरेक्ट करते हैं हम यहाँ पे 4। यहाँ पे हम देखेंगे 4 2 ज़ा x हमें मिल रहा है 8x प्लस ये 4 कैंसिल होगा। अब यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है कि ये 4 और 4, मतलब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये कैंसिल हो जाता है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे y लिखेंगे इज इक्वल टू दिस 4 एंड दिस 4 इज ऑल्सो कैंसिल, तो यहाँ पे ओनली 11 बचेगा। अब हमें ये इक्वेशन सिंपल फॉर्म में मिला है, विल गिव इट नेम 4, इसे हम 4 देंगे। अब हमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमें इक्वेशन 3 एंड 4 हमें अच्छे से सिंपल फॉर्म में मिल गए, लेकिन इनके साथ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कोई हमें सेम पेयर नहीं मिल रहा है, और अपोजिट साइन ये हमें नहीं मिल रहा है यहाँ पे। फॉर दैट हमें आइदर इक्वेशन मतलब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 8 है, तो यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट 8 करने के लिए हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो इस यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ पे भी 3 करने के लिए हमें y को इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वी विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3। इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई
इक्वेशन 4/3। तो यहाँ पे आएगा, डायरेक्ट लिखेंगे हम 3 8 ज़ा 24x प्लस 3y प्लस 11 3 ज़ा 33। ये हमारा इक्वेशन 5 होगा। नंबरिंग देते जाना है आपको इक्वेशन को। अब यहाँ पे हमें इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो y हमें सेम पेयर मिल गया है। नाउ यू हैव टू इलिमिनेट y। टू इलिमिनेट y यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये एडिशन दिए हुए दोनों, so you have to subtract both these equations. That means we'll subtract equation 3 from equation 5. So write here instruction, subtract equation 3 from equation 5. That means you have to write this fifth sum in the upper side. We'll write here 24x plus 3y is equal to 33, और उसके नीचे लिखना है x plus 3y is equal to 10. Now just observe here, आपको subtract का साइन लिखना है। As it is subtracting, हमें सभी साइंस चेंज करने हैं यहाँ पे। ओके, नाउ 24x में से यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, दैट मीन्स ऑलवेज देयर इज 1। ओके, सो 24 में से 1 गए तो कितने रह गए? 23x। ये y 3y एंड नेगेटिव 3y इलिमिनेट हो गया है। 33 में से 10 गए, सब्ट्रैक्शन है ना, 33 में से 10 गए, कितने रह गए? 23। दोनों साइड पे यहाँ पे 23 आया हुआ है, हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 23/23। यहाँ पे आएगा 23 1 = 23, x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो x हमें 1 मिल गया है। नाउ यू हैव टू सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन एनी ऑफ द इक्वेशन। हम यहाँ पे इक्वेशन 3 में सब्सटीट्यूट करते, क्योंकि यही मुझे इजी लग रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में ये सब्सटीट्यूट करना है, ये पुट करना है। सो विल राइट हियर इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। x इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ये 1 उस दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1, 3y इज इक्वल टू 9। नाउ दिस मल्टीप्लिकेशन 3 दूसरे साइड जाएगा, 9/3, y इज इक्वल टू 3 1 = 3, 3 3 = 9। Therefore y की वैल्यू हमें 3 मिल गई है। So in this way solution is x and y is equal to 1 and 3. So this is the solution. You can take the screenshot of this equation and rest of the sums I have solved first sum and 6 sum and solve किया है जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ऐसे 3 सम अभी हमने देखे हैं, बाकी के सम आपको प्रैक्टिस सेट में करके जो है वो आपको अपने नोटबुक में करने हैं। एंड यू हैव टू शो इट मी इन 4 days। जस्ट कीप इन माइंड, ये प्रैक्टिस सेट आपको 4 दिन में कंप्लीट करके मुझे दिखाना है। ओके, थैंक यू।